हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ द डे। गाइस, आज का हमारा ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बड़ी और बहुत सारी नई चीजें देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज Unacademy. On Unacademy, you will get many benefits. First and most important benefit of Unacademy is that you will get daily live classes which are very important and very crucial for your pre as well as mains preparations. Then we are also providing you structured courses on the Plus and Iconic. Guys, am I audible and visible to everybody? Am I audible and visible to everybody, guys? Please tell me so that I can go ahead. Then I am conducting live test and quiz every day at 8 a.m. in the morning and every day at 4 p.m. in the morning. So be ready for the next quiz at 4 p.m. today on Unacademy Learning app. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything on Unacademy Learning app. For that, you have to download the Unacademy Learning app from the Google Play Store and the App Store. As soon as you download that Unacademy Learning app, you will get you have to follow this telegram you have to follow this profile. This is my profile. Dedicate your hats to me on Unacademy and please subscribe to my Telegram channel, that is this one. यहाँ पे मैं सारी notes upload करता हूँ. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them, guys. Thank you very much. We are providing on Unacademy a comprehensive syllabus coverage that you are experiencing with me. So if you want to study in a comprehensive manner, you should be on the Unacademy, and for to be on the Unacademy, you should be on the Plus, जिसमें आपको live class, test series, unlimited practice and structured schedule मिल जाएगा. And for that, these are the plans that are available on Plus on Unacademy. अब ये प्लान को अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में एंजॉय करना है तो यू शुड यूज SKUS कोड बिकॉज दिस कोड इज will give you 10% discount. Good afternoon, Kanchi. Thank you very much, Shivani. And if you are going on Iconic, guys, all the benefits of Plus will be there on the Iconic. Along with that, you will get personal coach, daily means question and answer practice, study planner and personalized feedback. तो ये चार extra benefit आपको Iconic पे मिल जाएंगे. Or these are the three plans that are available with Iconic. Again, here if you use the SKUS code, it will give you 10% डिस्काउंट. तो आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस में आप आइकॉनिक एंजॉय कर सकते हो. इफ यू आर गोइंग ऑन आई ऑप्शनल, गाइस, ऑप्शनल के लिए अलग से हमारे पास प्लान्स है. उसमें भी SKUS कोड वायरल कोड ऑफ सक्सेस विल गिव यू 10% डिस्काउंट एंड यू कैन एंजॉय ऑप्शनल एट डिस्काउंटेड प्राइसेस. New Year resolution: if you are planning to crack 21 prelims, if you are planning to crack 22 prelims and 23 prelims, so guys, I am there, Unacademy is there, and for that we have launched all these batches in Hindi, English and bilingual part. You can check out all these batches on Unacademy that are launched on 4th of January. देन वी हैव अ कॉम्बो यूपीएससी सीएसई जीएस प्लस ऑप्शनल. ये आपको कम कॉस्ट में दोनों का एक्सपीरियंस देता है. प्लस के बेनिफिट और ऑप्शनल के बेनिफिट, आइकॉनिक के बेनिफिट्स अलॉन्ग विद ऑप्शनल बेनिफिट. तो आप ये कॉम्बो जो प्लान है वो भी ले सकते हो. आप अगर प्लस और मतलब ऑप्शनल प्लस और आइकॉनिक जीएस में जा रहे हो तो आपको 12 मंथ के लिए 88,000 पे करने पड़ेंगे और 24 मंथ के लिए 1,31,000. और इसके लिए SKUS कोड आपको क्या करता है, यहाँ पे देख लीजिए, दिस वायरल कोड ऑफ सक्सेस गिव्स यू 10% डिस्काउंट. और अगर आप प्लस पे जा रहे हो, मतलब जीएस का प्लस ले रहे हो और ऑप्शनल सीएसई ले रहे हो, तो उसमें 12 मंथ के लिए आपको 70,000 पे करना है, 24 मंथ के लिए 99,680. अच्छा, इतना पे नहीं करना है क्योंकि ये कोड SKUS आपको क्या करेगा, 10% डिस्काउंट दिला देगा. ठीक है, clear. Iconic की price hike proposed है, guys. There is a proposed price hike of the Iconic. So guys, if you are planning to go on Iconic, go there as soon as possible with the help of one viral code of success, that is SKUS. Okay, चलिए आगे. This is my 8 AM session. ये मेरी लाइव टेस्ट है 8 AM की. तो यू शुड अटेंड दिस लाइव टेस्ट बिकॉज दिस लाइव टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम 2021. This is my course on space technology. ठीक है, this course is available on the Plus. So if you want to study the space, you should attend this class.
अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। गाइस मुझे आप लोग बताओगे टुंड्रा, तैगा, कोल्ड डेजर्ट, टुंड्रा, तैगा या इस तैगा को ही हम क्या कहते हैं, बोरियल रेन फॉरेस्ट, सॉरी बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद देखा हमने कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद हमने प्रेरीज देखे या टेम्परेट ग्रासलैंड, और उसके बाद हमने वार्म डेजर्ट भी कर लिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी है, पढ़ी है, ये सब हमने किया हुआ है। आपको ड्राई रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। गुड आफ्टरनून राहुल, गाइस गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। यस गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से किया है। ड्राई रेन फॉरेस्ट भी एग्जिस्ट करते, यू नीड टू रिमेंबर दैट। गुड आफ्टरनून सुधा। देन याद रखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो आपको जो प्लांट्स या वेजिटेशन मिलता है, दैट इज द ओल्डेस्ट मेजर वेजिटेशन ऑन दी अर्थ। तो अगर आपको प्लांट की हिस्ट्री चेक करनी, इवोल्यूशन चेक करना है, तो यू शुड गो टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहीं पे आपको ये मिलेगा, ओल्ड इवोल्यूशनरी प्लांट्स मिलेंगे। देन हमने देखा था कि 3 रीजन्स में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसमें मेजर पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, मेजर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका, मेजर पार्ट्स ऑफ द इंडो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाज द फर्स्ट वेजिटेशन टाइप दैट इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ। देन सबसे ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म की अगर आपको डाइवर्सिटी देखनी है, तो यू विल फाइंड दैट डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि ओल्डेस्ट एंजियोस्पर्म भी आपको रेन फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए वो सब वुडी ट्रीज थे। अभी जो आपको एंजियोस्पर्म मिलते हैं उसमें आपको श्रब्स मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनली जो एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वुडी ट्रीज। ठीक है, ये भी आपको किससे पता चला? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ही पता चला है। उसके बाद आपको पता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी इसी रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। सवाना है, ग्रासलैंड है, जैसे जैसे रेनफॉल कम होगा तो आपको उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, उसके बाद सवानाज मिलेंगे और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट की बात करनी है। गाइस, आज जो मैं आपको ये एनवायरनमेंट वाला टॉपिक बताने जा रहा हूँ ना, ईच एंड एवरी लाइन इज द प्रोबेबल स्टेटमेंट इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और ये प्रोबेबल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं ना, आपको कंफ्यूज करते हैं प्रीलिम्स में। क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, तो हम एकदम खुश हो जाते हैं, अरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे क्वेश्चन आ गया, मतलब बहुत ही सिंपल होगा। लेकिन गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इज दिस योर फर्स्ट क्लास? हमें बड़ी खुशी होती है कि यार ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे क्वेश्चन आ गया, मैं तो इसको फाड़ दूंगा, मैं तो इसे एकदम करेक्ट आंसर करूंगा। बट दैट इज नॉट द केस गाइस। वहां पे उन्होंने अगर थोड़ी भी ट्रिक कर ली ना, हमारा अच्छा खासा हाथ का क्वेश्चन निकल जाता है। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज दैट क्वेश्चन। तो सुनिए, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, equatorial latitude of tropical rainforest and tropical deciduous forest keeps day length and mean temperature fairly constant throughout the year। अब मुझे एक बात बताइए, आप मुझे, ग्रेट सिद्धार्थ, मे आई नो व्हाट इज योर फुल नेम एंड वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? सुनिए, आप मुझे बताइए लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है? लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो आप लोग मुझे बताओगे लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेट्स सी आप में से कितने लोगों को इसका आंसर आता है। हम तो गूगल से पूछकर आपको बता देंगे, डोंट वरी। लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, yes, it is 21st June। 21st June, the day marks the commencement of astronomical summer in the northern hemisphere। To clarify, 21st June is the longest day of the year in terms of more hours of sunlight, but the number of hours remains the same रहता है 24 आवर्स ही, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सनलाइट मिलती है। वेरी गुड सिद्धार्थ,
वेरी गुड, इसमें आपको सबसे ज्यादा सनलाइट मिल गई 21 जून को। तो दैट इज नॉट द केस विथ इक्वेटोरियल लैटिट्यूड साहब। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में आपको पूरे साल में, ओके, और दूसरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है या लॉन्गेस्ट नाइट बताइए। लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वो होगी आपकी दिसंबर में। यस, 21 और 22 दिसंबर, 21 और 22 दिसंबर ये लॉन्गेस्ट नाइट है। अब लॉन्गेस्ट नाइट अगर 21 या 22 दिसंबर है, इसका मतलब क्या है गाइस कि डे शॉर्टर था। डे शॉर्ट था, इसका मतलब क्या है कि सनलाइट कम समय के लिए अवेलेबल हुई थी, सनलाइट कम समय के लिए अवेलेबल हुई थी। दैट इज नॉट द केस विथ इक्वेटोरियल पार्ट। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में आपको 12 आवर्स का डे मिलेगा, मतलब 12 आवर्स के लिए वहां सनलाइट होती है, और 12 आवर्स की नाइट मिलेगी, मतलब 12 आवर्स के लिए वहां पे डार्क होता है। दैट इज नॉट द केस विथ अदर लैटिट्यूड गाइस, ये आपको याद रखना है। तो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें वहां मिलते हैं या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, वहां पे डे की लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ईयर। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थ्रू आउट द ईयर क्या होती है, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। दैट इज नॉट द केस विद द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। प्लस वहां का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मीन टेम्परेचर इक्वेटोरियल लैटिट्यूड का कांस्टेंट रहता है। जैसे आप टेम्परेट रीजन में आओगे तो टेम्परेचर जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दैट इज नॉट द केस विद द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। तो दो पॉइंट याद रखने इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में, सिद्धार्थ, नंबर वन constant length of the day and number two constant temperature throughout the year। ये दो पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने इक्वेटोरियल लैटिट्यूड के बारे में। एंड वी नो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट ऑन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे ही आपको मोस्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर आपको टर्म ये पूछी जाए, जैसे ये स्टेटमेंट दिया जाए इन मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट mean length of the day and the mean temperature remains fairly constant throughout the year। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट, सन राइजेस डेली टू अ नियर वर्टिकल पोजीशन एट नून अ हाई लेवल ऑफ, ये तो आपको सभी को पता है, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में आपको हाई लेवल ऑफ इनकमिंग रेडिएंट एनर्जी मिलेगी। हाई लेवल ऑफ इनकमिंग रेडिएंट एनर्जी कहाँ पे मिलेगी आपको, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में मिलेगी। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड जाए आगे, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में कांस्टेंट लेंथ ऑफ द डे एंड कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, और आपको यहाँ पे हाई लेवल ऑफ इनकमिंग रेडिएंट एनर्जी मिलेगी। चलिए आगे, वेरी इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Many local variations in climate that result from topography, and these variations influence and restrict rainforest distribution within the tropic। याद रखिए, टोपोग्राफी मतलब माउंटेन है, प्लेन है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है, लाइक दैट। टोपोग्राफी जो है ना आपका, ये टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस करता है क्या, इन्फ्लुएंस करता है रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टोपोग्राफी इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। आपको अगर प्रीलिम में स्टेटमेंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द टोपोग्राफी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस? यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रीलिम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें जो मीन रेनफॉल होता है वो होता है 1800 टू 2500 मिलीमीटर। 1800 टू 2500 मिलीमीटर, इसी को आप इंच में अगर काउंट करोगे तो 70 टू 100 इंचेस। और ये थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, थ्रू आउट ईयर होता है। इंडिया जैसा नहीं है, जैसे इंडिया में देखिए थ्रू आउट ईयर रेनफॉल होता है, बिल्कुल नहीं। इंडिया में सिर्फ मॉनसून सीजन में रेनफॉल होता है, लेकिन इन केस ऑफ ट्रॉपिकल रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको थ्रू आउट ईयर इसी तरह का रेनफॉल मिलेगा, ये याद रखिए। और अगर आप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जाओगे तो रेनफॉल कम होता है।
800 to 1800 मिलीमीटर। अब आप बोलो कि सर हम तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, आप डेसिडियस क्यों बता रहे हो? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। ओके, क्लियर? चलिए आगे। तो इन विच आर pronounced season of low rainfall occurs typically support tropical deciduous forest, that is rainforest in which up to about 3/4 of the trees lose their leaves in the dry season. Very very important information guys। आप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट किसे कहोगे? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये टर्म किसे कहोगे बताओ? तो आप ये टर्म उन फॉरेस्ट के लिए कहते हो जहां पे, देखिए ऐसे रेन फॉरेस्ट, देखिए ऐसे रेन फॉरेस्ट जहां पे 3/4 ट्रीज अपने लीव्स शेड करते हैं। 3/4 ट्रीज शेड देयर लीव्स। ओके, क्लियर? उसे आप कहते हो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से यहां तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। याद रहेगा? याद रहेगा? बताइए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट किसे कहते हैं? रेन फॉरेस्ट इन विच अप टू अबाउट 3/4 ऑफ द ट्रीज लूज देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। उसे आप कहते हो, उसे आप कहते हो, क्या कहते हो? इसे आप कहते हो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर? इंटरेस्टिंग चीज है या नहीं? गुड आफ्टरनून सी यू। अब मुझे बताइए, अगर आपको प्रीलिम में स्टेटमेंट आ जाए इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स आर द रेन फॉरेस्ट इन विच अप टू 3/4 ऑफ द ट्रीज लूज देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, आपको लग सकता है कि हाउ अ रेन फॉरेस्ट कैन बी अ डेसिडियस फॉरेस्ट। यस, यस, ऐसे रेन फॉरेस्ट जिनमें 75% ट्रीज अपने लीव्स को ड्राई सीजन में शेड करते हैं, ऐसे रेन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स, जहां पे आपको यूपीएससी ट्रिक कर सकती है, क्योंकि हमारे सामने रेन फॉरेस्ट मतलब होता है एवरग्रीन। अच्छा मुझे बताइए, कौन सा फॉरेस्ट एवरग्रीन होता है? रेन फॉरेस्ट एक एवरग्रीन हो सकते हैं। विच अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज एवरग्रीन? प्लीज बताइए, विच अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज एवरग्रीन? चलो बोलो। यस गाइस, क्विकली लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट फैक्ट। कितने लोगों को याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। नो नो नो, वेरी गुड। रमनदीप ने नहीं, रमनदीप, सौरभ पाटिल ने करेक्ट आंसर दिया। सौरभ वेरी गुड। इन्हीं को हम कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट, या इसी को आप कहते हो कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसी को आप कहते हो कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस या बोरियल फॉरेस्ट ये एवरग्रीन होते हैं, और दूसरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी क्या होते हैं? एवरग्रीन होते हैं। ये फैक्ट याद रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसे आपने अगर लिख भी लिया ना, नॉट ए इशू, आपको याद अच्छे से याद रहेगा। वेरी गुड सिद्धार्थ। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए पढ़ लीजिए। द प्रिंसिपल डिटरमाइनिंग क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन लोलैंड रीजन्स ऑफ द ट्रॉपिक्स इज रेनफॉल। देखिए, आपको अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फैक्टर जो डिटरमाइन करता है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करने वाला प्रिंसिपल फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली अगर इनके नाम में रेन है तो दैट इज रेनफॉल। लेकिन कैसा? टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजनल वेरिएशन। अगर एनुअल रेनफॉल कंसिस्टेंटली हो रहा है तो इट विल बी अ ट्रॉपिकल, है ना? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मेन प्रिंसिपल फैक्टर क्या है गाइस? इट इज रेनफॉल। इट इज द मेन प्रिंसिपल फैक्टर, ये याद रखिए फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, चलिए आगे। सॉइल भी डिसाइड करती है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी डिसाइड करता है, अदर फैक्टर्स आल्सो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेनफॉल। इज दैट क्लियर? तो प्रीलिम के लिए याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रिंसिपल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
that is responsible for determining the distribution of rainforest is rainfall. Okay, चलिए आगे नेक्स्ट. ओके, अब मुझे बताइए इंडिया में जो मॉनसून रेनफॉल होता है, इट इज अ समर रेनफॉल और विंटर रेनफॉल. तो इंडिया में मॉनसून रेनफॉल जो होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ समर रेनफॉल. यहाँ देखिए द समर मंथ्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून टू अगस्त. जून टू अगस्त ये समर मंथ्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. वेदर सिस्टम शिफ्ट नॉर्थवर्ड ब्रिंगिंग रेन टू रीजन्स टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ट्रॉपिक्स, जैसे मॉनसून रेन्स ऑफ इंडिया एंड म्यांमार. वेरी सिंपल फैक्ट रिमेंबर. And during the southern hemisphere summer, a weather system moves southward bringing rain from December to February. Northern Australia में याद रखिए दिसंबर टू फेब में रेनफॉल होता है, मतलब अभी वहां पे रेनफॉल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और हमारा रेनफॉल का सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया. आगे चलिए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हॉट सीजनली वेट एरियाज ग्रो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रेन के लिए याद रखिए टीक, ये जो प्लांट है टीक, दिस प्लांट बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. अगर आपको प्रीलिम का क्वेश्चन पेपर याद होगा तो उन्होंने पूछा था कि टीक प्लांटेशन मेनली आपको कौन से फॉरेस्ट में मिलता है, तो वो आपको मिलता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में. कौन से रेन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, कौन से रेन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, ऐसे रेन फॉरेस्ट जहां पे 3/4 ट्रीज अपने लीव्स शेड करते हैं. 3/4 trees shed their leaves. Am I right? Shed their leaves during dry season. उसे हम tropical deciduous forest कहते हैं, और teak plant belong करता है tropical deciduous forest को. Clear? 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 Should we go ahead guys? चलिए आगे चलते. बड़ी सिंपल सिंपल फैक्चुअल चीजें, लेकिन आपको ऐसे उन्हें निकाल कर बताना जरूरी है ताकि आपको याद रहे. नहीं तो पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, समझने के लिए सब समझते हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, उसमें से प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है, ये मेन एम है मेरा आपको बताना. चलिए आगे, तो ये पढ़ लीजिएगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. जो मीन टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, मुझे बताइए व्हाट इज द मीन रेनफॉल, व्हाट इज द मीन rainfall of tropical rainforest. mean rainfall of tropical rainforest बता दीजिए जल्दी, तो फिर मैं आगे जाऊंगा. और भी क्वेश्चन है आपके लिए. ये एक क्वेश्चन हुआ. दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि डे की जो लेंथ है वो कांस्टेंट होती है क्या, मीन लेंथ ऑफ द डे कांस्टेंट होती है क्या. यस. तो गाइज आपका जो मीन रेनफॉल होता है आपको पता. वेरी गुड राहुल दास, नहीं सिद्धार्थ ने करेक्ट बताया. 1800 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है मीन रेनफॉल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और डे की लेंथ भी कांस्टेंट होती है. उसी तरह मुझे बताइए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में बताइए कितना रेनफॉल होता है. What is the average rainfall in tropical deciduous forest? और याद रखिए ट्रॉपिकल deciduous forest में थ्रू आउट ईयर रेनफॉल नहीं होता. ट्रॉपिकल deciduous forest में ड्राई सीजन में रेनफॉल कम होता है. क्लियर. चलिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आपका रेनफॉल होता है 800 टू 1800 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आपको मीन टेम्परेचर याद रखना है. आपको रेनफॉल पता चला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का. अब आपको मीन टेम्परेचर याद रखना है. मीन टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इनका मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस. यही टेम्परेचर की रेंज आपको मुंबई में मिलेगी. और मुंबई कहाँ आती है, वेस्टर्न घाट्स में आती है. और वेस्टर्न घाट इज एन एग्जांपल ऑफ रेन फॉरेस्ट, दो इट इज नॉट अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेन फॉरेस्ट. ओके. तो ये मीन टेम्परेचर आपको प्रीलिम के लिए मस्ट है याद रखना. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. कभी भी 18 डिग्री के नीचे नहीं जाता.
कभी भी 18 डिग्री के नीचे नहीं जाता और कभी भी 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मीन टेम्परेचर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस। मैं एक एक फैक्ट आपको बताता जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी, है ना। चलिए आगे। द क्लाइमेट सपोर्टिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज परपेचुअली हॉट, टेम्परेचर नेवर रीच द हाई वैल्यूज रेगुलरली। अब देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर हॉट है, बट ये इतना हॉट कभी नहीं होता जैसे डेजर्ट में देखिए 52, 53, 57 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। Yes, there is no winter in equatorial region. Can we call Sundarban also a part of this? Yes, Rahul Das. Mangrove is an example of mangrove forest is an example of equatorial rainforest only, but ये मैंग्रोव सिस्टम है, उस पर भी हम आने वाले हैं। तो चलिए आपको मुझे रीजन बताने पड़ेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर हाई क्यों नहीं होता। चलो बोलो। यस गाइस, उसका रीजन है आपके सामने। वेरी वेरी गुड सिद्धार्थ। पार्टली ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ क्लाउड कवर। देखिए इक्वेटोरियल रीजन में देयर इज अ रेनफॉल एवरी डे इन द आफ्टरनून। देयर इज अ रेनफॉल एवरी डे इन द आफ्टरनून। अब रेनफॉल होना है तो देयर मस्ट बी अ क्लाउड कवर, और क्लाउड कवर होगा, क्लाउड कवर होगा तो ये क्या करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखता है ना, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। एम आई राइट? Am I right? So it is partly because of the cloud cover, which limit the mean number of sunshine hours per day to between 4 and 6. Wow! तो देखिए यहाँ पे ट्रिक, मुझे बताइए सबसे ज्यादा सनशाइन कौन सी लैटिट्यूड पे है, बताओ। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन कौन सी लैटिट्यूड पे है? आप आंसर करोगे इक्वेटर पे, और इक्वेटर पे ही आपको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। लेकिन लेकिन याद रखिए सनशाइन इक्वेटर पे है, लेकिन वो सनशाइन अर्थ तक आ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैक्सिमम देख लीजिए आप 4 to 6 आवर्स, मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स तक ही सनशाइन आपको दिखेगी। 12 आवर में से सिर्फ 4 to 6 आवर्स तक आपको सन दिखेगा, तो अदरवाइज इट इज ऑलवेज क्लाउडी, अदरवाइज इट इज क्लाउडी होल डे, हमेशा वो क्लाउडी रहता है। तो अगर स्टेटमेंट आपको आ जाए कि मीन नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स पर डे ऑन इक्वेटर इज बिटवीन 4 to 6 आवर्स, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? Mean number of sunshine hours per day on equator is between 4 to 6 hours. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर नॉट सेइंग कि डे की लेंथ, दे आर टॉकिंग अबाउट द सनशाइन, दे आर नॉट सेइंग अबाउट द डे लेंथ, दे आर टॉकिंग अबाउट सनशाइन। क्लियर? क्लियर? सनशाइन होना और डे, इन दोनों में डिफरेंस है। सनराइज हुआ मतलब डे स्टार्ट हुआ, सन सेट हुआ मतलब डे स्टार्ट बंद हुआ। लेकिन अभी मेरे घर के बाहर पूरा क्लाउड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस आवर इज नॉट अ सनशाइन आवर फॉर माय एरिया। तो इनके सनशाइन आवर मीन जो है ना पूरे साल में होते बस 4 to 6। आपको जब स्टेटमेंट दिए जाए ना तो आपको केयरफुली पढ़ना है ये सनशाइन आवर की बात कर रहे हैं या मीन लेंथ ऑफ द डे की बात कर रहे हैं। ओके ओके, चलिए आगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई क्यों नहीं होता? एक तो क्लाउड कवर, हाई लेवल्स ऑफ क्लाउड कवर, और दूसरा मीन सनशाइन जो है ना, मीन सनशाइन आवर्स 4 to 6 ही। अब अगर सनशाइन ही नीचे नहीं आएगी तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो दीज आर द टू रीजंस, दैट्स व्हाई द टेम्परेचर्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डू नॉट रीच वेरी हाई वैल्यूज। क्लियर? नेवरदलेस द हीट मे सीम एक्सट्रीम ओविंग टू, ओके, आपको पता है जितनी ज्यादा एयर में ह्यूमिडिटी होगी उतना आपको ज्यादा हीट फील होगा। जैसे अगर आप मुंबई में जाओगे ना, तो मुंबई में आपको जितनी स्वेटिंग और हीट एक्सपीरियंस करते हो उतनी शायद जैसलमेर में भी ना हो, जैसलमेर में भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे एयर ड्राई है जैसलमेर में।
और मुंबई में हेयर क्या है, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा आपको हीट एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। सो हीट में सीम एक्सट्रीम ओविंग टू द हाई लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। नाइट में इक्वेटोरियल रीजन में ह्यूमिडिटी कैन रीच अप टू 100% और डे में ह्यूमिडिटी होती है 50%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो अब मुझे बताइए, इक्वेटोरियल रीजन में जो हाई हीट एक्सपीरियंस होती है, हमें बहुत ज्यादा हीट एक्सपीरियंस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी, नॉट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। एंड वार्म डेजर्ट में जो हमें हीट एक्सपीरियंस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई हाई टेम्परेचर एंड नॉट बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। तो दोनों में आपको हीट ज्यादा फील होगी, लेकिन एक जगह पे ह्यूमिडिटी की वजह से और दूसरी जगह पे टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। चलिए आगे। So exacerbating the discomfort is the fact that winds are usually light. Very very important fact for you. कोई मुझे बता सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हम बात करते हैं ना अर्थ पे, देख लीजिए ये विंड्स जो है अर्थ पे हम बात करते हैं कि ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ विंड्स आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आ रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी इक्वेटर की तरफ विंड्स आ रहे हैं, और ये दोनों इक्वेटर में मर्ज होते हैं, उसी को हम कहते हैं आईटीसी से। लेकिन एग्जैक्ट 0 डिग्री वाला जो है, जैसे 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, इनके बीच में जो इक्वेटोरियल रीजन है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डॉल्ट्रम्स। डॉल्ट्रम का मतलब क्या होता है, ट्रेड winds meet in the area of low pressure around the equator called doldrums. In the doldrums there is very little wind. Wow. In the doldrums there is very little wind because of the warm rising air. क्योंकि एयर वर्टिकली मूव हो रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली मूव हो रही है, तो वहां पे बहुत कम विंड होते हैं या नहीं होते। इट इज डॉल्ट्रम इज द साइलेंट जोन एग्जैक्टली अबाउट द इक्वेटर। साइलेंट जोन होता है, यहाँ पे कोई भी आपको विंड नहीं मिलेगा। और डॉल्ट्रम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फुलिश, बिकॉज सेलर्स वेर कंसिडर्ड फुलिश इफ दे गॉट देयर शिप स्टक इन दीस एरियाज ऑन लिटिल विंड, ठीक है। तो ये डॉल्ट्रम वाला एरिया है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, हॉर्स लैटिट्यूड, वेस्टर्लीज, रोरिंग फोर्टीज, पोलर ईस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। तो ये सब डॉल्ट्रम जो है ना, ये डॉल्ट्रम में ही तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। यू विल फाइंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन डॉल्ट्रम्स, ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन डॉल्ट्रम्स। चलिए आगे आगे चलते हैं। तो ये एनवायरनमेंट वाला पार्ट हुआ डॉल्ट्रम, आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखिए मेन प्रिंसिपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस एनवायरनमेंट वाले पार्ट को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि रेनफॉल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 1800 टू 2500 मिलीमीटर होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं, ऐसा रेन फॉरेस्ट जहाँ पे 3-4 ट्रीज अपनी लीव शेड करते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन, और वहां पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में 800 टू 1800 मिलीमीटर रेनफॉल होता है। देन जो प्रिंसिपल डिटरमाइनिंग क्लाइमेटिक फैक्टर है रेन फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो हमने कहा था रेनफॉल, फिर वो टोटल अमाउंट एज वेल एज सीजनल वेरिएशन, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये समर वाला मानसून वाला हमने देखा था। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको प्रीलिम के लिए याद रखना है वो ये कि मीन टेम्परेचर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या है, 20 एंड 29 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस। You know the reason why the maximum temperature in tropical rainforest do not go very high, partly because of the cloud cover and the mean number of sunshine hours is between 4 and 6 only. और यहाँ पे जो आपको हॉटनेस फील होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, और डेजर्ट में जो हॉटनेस आपको फील होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर। व्हाट अ कूल इंफॉर्मेशन यू जस्ट गॉट। देन ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे विंड्स आर लाइट, मीन विंड स्पीड इतनी कम होती है जैसे 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन डॉल्ट्रम्स। आपने ये डॉल्ट्रम्स ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। वी आर गोइंग अहेड, ठीक है, डॉल्ट्रम हो गया। देन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें माइक्रो क्लाइमेट की, देखिए विद इन द फॉरेस्ट टेम्परेचर रेंज एंड विंड स्पीड
are reduced and humidity is increased relative to the climate above the tree canopy or in nearby clearing. चलो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर आप डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगी, विंड स्पीड कम मिलेगी, टेम्परेचर रेंज भी कम मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप ये ट्री कैनोपी छोड़कर ऊपर आओगे, मतलब हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे, रेन फॉरेस्ट की डेंसिटी क्रॉस करके ऊपर आओगे, तो वहां पे ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, विंड स्पीड इंक्रीज होगी, टेम्परेचर रेंज भी इंक्रीज होगी। या फिर अगर कोई आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया क्लियर किया है, वहां पे भी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, विंड स्पीड इंक्रीज होगी और टेम्परेचर रेंज इंक्रीज होगी। तो ये जो ह्यूमिडिटी, ज्यादा ह्यूमिडिटी आपको कहाँ मिलती है? डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। आप ऊपर जाओ या बाहर निकल आओ तो वो कम हो जाती है। ओके, देन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हेवी रेनफॉल होता है एंड दैट रेनफॉल टेक्स प्लेस एवरी डे, लेकिन गाइज इस रेनफॉल में से मोस्ट ऑफ द रेनफॉल डू नॉट रीच ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंच ही नहीं पाता। पूरा रेनफॉल ट्रीज के लीव्स पे, ट्रीज की बार्क पे, उनकी बैंक्स पे, मतलब ऊपर ही ऊपर रह जाता है और बाद में इवेपोरेट भी हो जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेन रीचिंग द ग्राउंड इज ऑल्सो रिड्यूस्ड as much as 90%, guys. Can we say wind and humidity inversely proportional है? Yes, we can say नहीं है ही रमनदीप, that's true, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, so amount of rain reaching the ground is also reduced as much as 90% reduce होता है। कितना? 90%। as रेन वाटर एपिफाइट absorb करते, अब एपिफाइट क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर क्या होता है? एपिफाइट ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ट्री की बार्क्स एब्जॉर्व कर लेते हैं, फॉलिएज में वो फंस जाता है, तो वो ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाता एंड बाद में इट इवेपोरेट्स डायरेक्टली बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो याद रखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 90% जो रेन है डू नॉट रीच द ग्राउंड। नेक्स्ट, नाउ this topic is very very important for your preliminary examination। एपिफाइट का मतलब आपको पता होना चाहिए। So epiphyte is an organism that grows on the surface of a plant। जो किसी और प्लांट के सरफेस पे ग्रो होता है उसे हम कहते हैं एपिफाइट। एपिफाइट्स आर वेरी कॉमन, एपिफाइट्स आर वेरी कॉमन इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, they are very common in mangrove forests and in the tropical rainforest। You can also find epiphytes in tropical deciduous forest। तो ये तीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम या तीन इकोसिस्टम में आपको एपिफाइट मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स में आपको एपिफाइट्स मिलेंगे। प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो प्लांट के सरफेस पे ग्रो होता है, लेकिन वो पैरासाइट नहीं है। एपिफाइट्स आर नॉट पैरासाइट। वो प्लांट के सरफेस पे ग्रो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ग्राउंड मिलता ही नहीं है जर्मिनेशन होने के लिए। एक सीड है, वो सीड ना, क्योंकि उसे ग्राउंड नहीं मिल रहा है जर्मिनेशन के लिए, तो वो सीड आपको जो है मिलेगी, जर्मिनेट हो जाएगी किसी प्लांट के बार्क पे, किसी प्लांट के ब्रांच पे। क्यों? क्योंकि उसे नीचे जगह नहीं मिली। अब वो जब इस प्लांट पे ग्रो हो रही है ना, तो वो उस प्लांट से वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करते। दे डिराइव इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द रेन and from the water in marine environments or from the debris accumulating around it। Very very important, epiphytes are not parasites। epiphytes are not parasites, याद रहेगा ये वाला पॉइंट। they are not at all parasites guys। चलिए आगे, ये क्लियर हुआ एपिफाइट वाला पॉइंट। चलिए आगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एपिफाइट्स डिफर फ्रॉम पैरासाइट्स इन दैट दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर फिजिकल सपोर्ट। वाओ, epiphytes grow on other plants for physical support and parasites grow on other plants or other organisms for nutrients। So epiphytes grow on other plants for physical support and do not necessarily affect the host negatively। तो एपिफाइट ये आपका पैरासाइटिक बायोटिक इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, an organism that grows on other organism that is not a plant may be called an epibiome। Suppose अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है,
इफ दैट ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग ऑन द प्लांट तो उसे आप कहोगे ईपीफाइट। फाइट का मतलब प्लांट और ईपी का मतलब ऑन द टॉप। तो प्लांट के टॉप पे ग्रो हो रहा है तो इसलिए ईपीफाइट। अगर वो ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो हो रहा है लेकिन वो प्लांट नहीं है, जैसे मेरी स्किन पे अगर कोई इंसेक्ट ग्रो हो रहा है एक्सटर्नली तो उस इंसेक्ट को आप कहोगे इपीबायंट। प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन इपीफाइट एंड इपीबायंट। इपीफाइट के लिए इट इज मस्ट फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन द प्लांट, and for epibiont it is must for that organism not to grow on the plant. It can grow on any other living organism but not to grow on plant, not on the plant. प्लांट छोड़कर आप किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कीजिए, उसे आप कहोगे इपीबायंट। और अगर प्लांट पे ग्रो हो रहे तो उसे आप कहोगे इपीफाइट। क्या ये प्रीलिम्स के लिए याद रहेगा आप सभी को? कीपर किस पे ग्रो होता है अजय कृष्णा? कैन यू लाइक एक्सप्लेन अस? आप अब केरला से हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कीपर ग्रोज ऑन, इज इट कीपर ग्रोज ऑन ट्रीज? ए पीपर ट्री या पीपर? ए पीपर आई डोंट थिंक कि ये किसी और प्लांट पे ग्रो होता है अजय। ठीक है, सो इपीफाइट और इपीबायोंट में सभी को डिफरेंस समझ में आ गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद अगर कोई भी आपको इपीफाइट और इपीबायोंट में डिफरेंस पूछे तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। इपीफाइट और इपीबायोंट दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होते हैं। सिर्फ इपीबायोंट प्लांट छोड़कर किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होता है और इपीफाइट प्लांट के ऊपर ग्रो होता है। वी आर गोइंग अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सम एग्जांपल्स ऑफ इपीफाइट: moss is an example of epiphyte, liverwort epiphyte, lichen epiphyte, algae epiphyte है। then tropical areas में ferns, cacti, orchids, bromeliadas, these are the some names of epiphytes। ठीक है, चलिए आगे। आपको मुझे बस epiphyte का मतलब समझाना था। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन epiphyte एंड पैरासाइट, और दूसरा मुझे आपको बताना था डिफरेंस बिटवीन epiphyte एंड epibiont। So epiphyte is it is a feature of tropical rainforest, mangrove forest and the tropical deciduous forest। और epibiont भी वही होगा। चलिए, no अजय कृष्णा, need a tree support that is a different story। ठीक है, लेकिन अगर वो एग्जैक्ट ट्री के ऊपर ग्रो होता है, आप पीपर प्लांट जो है वो सॉइल में ही ग्रो होता है ना, ट्री के ऊपर ग्रो नहीं होता ना, वो ट्री का हेल्प लेता है ग्रो होने के लिए, लेकिन वो ट्री के ऊपर ग्रो नहीं होता है। जैसे वैसे तो हम हर एक हर्ब को हम कह सकते हैं एपीफाइट, लेकिन दे आर नॉट एपीफाइट्स। ठीक है, एपीफाइट के लिए मस्ट है कि उसकी जो रूट्स है ना वो प्लांट के ऊपर होनी चाहिए, नॉट इन द सॉइल, तभी आप उसे एपीफाइट या एपीबायोंट कहोगे। ठीक है, चलिए आगे। So epibiont is an organism that lives on the surface of another living organism. Okay, epibiont is harmless to its host, epiphyte भी harmless to host होते हैं, epibiont भी harmless to host होते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है ना आपका epiphyte या epibiont, it is can be considered as mutualistic और commensalistic। ये पैरासाइटिक नहीं है या म्यूचुअलिस्टिक नहीं है। तो अभी मैं आपको बायोटिक इंटरेक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपका एक प्रॉपर और जल्दी मतलब रिवीजन हो जाएगा। तो देख लीजिए बायोटिक इंटरेक्शन, फिर आप डिसाइड करोगे कि इपीफाइट या इपीबायोंट किसके अंदर आता है। देख लीजिए, अगर दोनों स्पीसीज वन और स्पीसीज टू दोनों का अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप उसे कहते हो म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है आप और हम, आपका भी बेनिफिट हो रहा है, हमारा भी बेनिफिट हो रहा है, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन या रिलेशन है हम दोनों में। ठीक है, या फिर आप म्यूचुअलिज्म का दूसरा एग्जांपल लीजिए, अल्गी एंड फंजाई, लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, माइकोराइजा जिसमें फंगाई और प्लांट के हायर प्लांट के रूट्स है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, कोरल रीफ्स आर एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म जिसमें अल्गी और पॉलिप्स ये दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, तो म्यूचुअलिज्म। अगर एक स्पीसीज का लॉस हो रहा है और दूसरे स्पीसीज का बेनिफिट हो रहा है उसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म और प्रेडेशन। जैसे अगर डियर को लायन खा रहा है तो इसमें डियर का लॉस हुआ लेकिन लायन का बेनिफिट हुआ, प्रेडेशन। या फिर अगर मेरी स्किन पे
मेरी स्किन पे अगर कोई इंसेक्ट ग्रो हो रहा है जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, तो उस केस में वो पैरासिटिज्म का एग्जांपल हुआ, क्योंकि इंसेक्ट का बेनिफिट हो रहा है लेकिन मेरा लॉस हो रहा है, क्योंकि वो मेरा ब्लड सक कर रहा है, मेरे न्यूट्रिएंट खा रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिज्म। और अगर एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी को ना बेनिफिट हो रहा है ना लॉस, इपीफाइट। देखिए इपीफाइट जब प्लांट पे ग्रो होती है तो इपीफाइट का बेनिफिट होता है, यस, लेकिन प्लांट का बेनिफिट होता है, नो। प्लांट को कुछ लॉस होता है, नो, क्योंकि प्लांट का वो ना नो न्यूट्रिएंट ले रही है ना वाटर, वो वाटर रेनफॉल से लेती है, एयर से वाटर और न्यूट्रिएंट दोनों एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इपीफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। ठीक है, इपीफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, जिसमें एक को बेनिफिट होता है और दूसरे का ना बेनिफिट होता है और ना ही लॉस होता है। उसके बाद अगर दोनों स्पीसीज का लॉस हो रहा है, दोनों स्पीसीज का लॉस हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कंपटीशन। और अगर एक स्पीसीज का लॉस हो रहा है और दूसरी स्पीसीज का ना लॉस हो रहा है और ना बेनिफिट हो रहा है, उसे कहते हैं अमेंसलिज्म। सपोज ये लार्ज ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, और इस ट्री के नीचे यहाँ पे एक छोटा ट्री ग्रो हुआ है, जर्मिनेट हुआ बेचारा गलती से। अब इस लार्ज ट्री की वजह से इस ट्री को ना सनलाइट मिलेगी और ना ही न्यूट्रिएंट मिलेगी, तो आफ्टर सम टाइम दिस ट्री विल डाई। तो इसका क्या हुआ? लॉस। इसका क्या हुआ? बेनिफिट। एक का लॉस हुआ, दूसरे का बेनिफिट हुआ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, और सॉरी, इसका बेनिफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ, न्यूट्रल है, मतलब इसका ना लॉस हुआ ना बेनिफिट हुआ, इसका लॉस हुआ, तो देखिए ना लॉस ना बेनिफिट एंड लॉस, इसे हम कहते हैं अमेंसालिज्म। और न्यूट्रलिज्म में ना बेनिफिट ना लॉस, दोनों को ना बेनिफिट होता है ना लॉस होता है। इस केस में आप न्यूट्रलिज्म नहीं कह सकते इपीफाइट या इपीबायोट को, क्योंकि इपीफाइट का बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हम उसे कमेंसलिज्म कहेंगे। तो इपीफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, इपीबायोट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। वी आर गोइंग अहेड गाइस। अब चलिए वापस, इपीबायोट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हार्मलेस होता है दोस्तों, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं इपीबायोट्स के, जैसे बार्नाकल्स, रेमोराज एंड अल्गी, which live on the surface of wells, which live on the surface of sharks, which live on the surface of sea turtles। तो वेल, शार्क और सी टर्टल को ना बेनिफिट है ना लॉस है, लेकिन इन बार्नाकल्स, रेमोराज और अल्गी का क्या हो रहा है? बेनिफिट भी हो रहा है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। होस्ट ऑफ द इपीबायोट, इपीबायोट के होस्ट को कहते हैं बेसिबायोट। तो ऊपर जो ग्रो होता है उसे कहोगे आप इपीबायोट, और नीचे जो ग्रो हो रहा है उसे आप कहोगे बेसिबायोट। क्या कहोगे उसे आप? बेसिबायोट। क्लियर? सो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज इपीफाइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज इपीबायोट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज बेसिबायोट। एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुई होगी, कमेंसलिज्म का मतलब क्या है, अमेंसलिज्म का मतलब क्या है, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, पैरासिटिज्म का मतलब क्या है, प्रेडेशन का मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। तो दीज आर डिफरेंट बायोटिक इंटरेक्शंस, मैंने आपको बता दी। एपीबायोट, एपीफाइट, बेसिबायोट हो गया, और अब हम आगे जा रहे हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपीफाइट। देख लीजिए, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिलेंगे, लक्षद्वीप में भी मिल जाएंगे। ठीक है, एपीफाइट। चलिए आगे। अब रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सॉइल कैसे होती है, तो मुझे बताइए, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में सॉइल फर्टाइल होती है या नहीं? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में सॉइल फर्टाइल होती है या नहीं? तो आंसर है, आंसर क्या है? यस, टेम्परेट डेसिडियस सॉइल फॉरेस्ट है और फर्टाइल सॉइल। मुझे बताइए, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज प्रेजेंट इन द बोरियल फॉरेस्ट, और what type of soil is present in the coniferous forest, or what type of soil is present in the taiga region। चलो, इन तीन रीजन्स में, बोरियल का मतलब कॉनिफेरस और कॉनिफेरस का मतलब ही तैगा है, तो यहाँ पे सॉइल कैसे मिलती है बताओ। तो सॉइल का नाम भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यस, वेरी गुड सौरभ पाटिल। उस सॉइल का नाम है पॉडसॉल। और ये पॉडसॉल फर्टाइल होती है क्या? आर दीज सॉइल्स फर्टाइल? पॉडसॉल्स फर्टाइल होती है क्या? नेवर गाइस, दे आर लो इन न्यूट्रिएंट, दे आर लो इन पीएच, दे आर लो इन मॉइस्चर, सब कुछ इनमें लो है पॉडसॉल्स में। ठीक है, सो उसी तरह अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आओगे, तो
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल दे आर डीप, दे आर वेरी डीप, they are deep, they are very deep but not very fertile, but not very fertile. They will be more fertile than podzol. ये podzol से ज्यादा fertile होगी, लेकिन आपके टेम्परेट deciduous forest की soil से less fertile होगी. कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, दे आर फर्टाइल बट नॉट वेरी फर्टाइल. ओके, क्यों नहीं होती ये ज्यादा फर्टाइल? टेम्परेट डेसिडियस की सॉइल जो है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है. उसका रीजन ये है कि आपके वहां पे जो वो हमेशा लीव्स शेड करते हैं वहां के प्लांट, और वो लीव्स शेड करने के बाद उनको वो उनका डिग्रेडेशन होता है, और डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है, वहां पे सॉइल फॉर्मेशन, ह्यूमस कंटेंट वगैरह बढ़ जाता है, तो उनका फर्टिलिटी बढ़ जाता है. बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी तो इतने सारा लीव्स है, इतने सारे प्लांट्स है, मतलब इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, वो इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं कर सकता अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी. तो ऐसा क्या हो जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल फर्टाइल नहीं होती, वो हम डिस्कस करेंगे कल, आज नहीं. ठीक है, ये है आपका मतलब कल की सीरियल अगर आपको देखनी है तो आपको अभी क्या करना पड़ता है, एक तो यहाँ पे ये लगाना पड़ता है ना कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, लाइक दैट. So this we will discuss tomorrow. That's it for the day, guys, about the soil and the biota and the flora and the fauna of tropical rainforest population and community, general structure of rainforest. This we will discuss everything tomorrow. आज के लिए बस इतना ही काफी. जाते जाते आपको एक चीज याद रखनी है, और वो चीज आपको पता है, उस चीज का नाम है वायरल कोड ऑफ सक्सेस. Viral code of success, SKUS. You should remember this code SKUS because this viral code of success starts with success, it ends with success, और बीच में ही कश्मीर यूनिवर्सिटी ये आपको 10% डिस्काउंट देता है अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, और जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो वहाँ पे यू कैन यूज दिस एज अ इनवाइट कोड. आप इस SKUS कोड को एज अ इनवाइट कोड यूज कर सकते हो कहीं पे भी अनअकैडमी पे. ठीक है, इवन आपको फ्री प्लान अनलॉक करना है, यू नीड अ कोड. तो इन दैट केस यू कैन यूज द कोड ऑफ डॉक्टर सचिन कदम सर, जिस कोड का नाम है SKUS. दूसरी बात आपको याद रखनी है, दिस टेलीग्राम चैनल. तो आप अगर इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अभी जो मैंने पढ़ा है इसकी नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको कहाँ मिल जाएगी, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. सिर्फ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली नोट्स में पर्पसफुली अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साथ ही पूरी फाइल अपलोड कर दूंगा जिसमें 0 से लेकर 0 तक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सारी डिटेल्स होगी. ठीक है, और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है. ठीक है, दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल. आपको इस प्रोफाइल पे जाना है और ये प्रोफाइल ओपन करके सौरभ पाटिल एंड सिद्धार्थ, इस प्रोफाइल को फॉलो करना है. आपकी हैक्स मुझे डेडिकेट करनी है, और आपको मेरा नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना है जो होने वाला है 4 PM को ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ये 4 PM की मॉक टेस्ट है गाइस, तो सब लोग शार्प टाइम को 4 PM की मॉक टेस्ट में एंट्री करेंगे, and you guys will have fun, you guys will enjoy this awesome mock test on history, on geography, on polity, on economy, on science and technology, and on geography mapping. As well as you guys will join me tomorrow at sharp 8 AM on Unacademy Learning app for a live test. 8 AM को लाइव टेस्ट भी होगी, तो उसी पे आप लोग शार्प 8 AM को ज्वाइन करोगे कल. बहुत सारे स्टूडेंट इन टेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं और उनका प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, तो आपको ये 4 PM और 8 AM की टेस्ट कंपल्सरी करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू further and speed up your preparation of 2020 and prelims. It is must, guys. Okay, so that's it for the day, guys. Thank you very much for attending my class. We are meeting tomorrow by 4 PM today. Till that time, bye bye, take care, sayonara, and study hard, work hard,